Hello students. So in today's lecture we are going to start with the next concept of chapter 3rd, that is the gross and net concepts of domestic product. See, as we have already studied in our previous lecture that the domestic income and domestic product, both the concepts are identical to each other and there's no differentiate or any kind of difference between these two terms. So basically in today's part we are going to study about the gross and net concepts and how they are differentiate from one another. Simply, every kind of domestic product is measured in two parts. One is the gross domestic product and other is the net domestic product. See, the difference between these two is only of the depreciation. That gross includes the depreciation while net does not include the depreciation. Depreciation is also stated as consumption of fixed capital. Again in the numerical part आपको depreciation भी दिया जा सकता है sum के अंदर. Other than that, the other name for depreciation is consumption of fixed capital. So ग्रॉस के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो इंक्लूडेड होता है, नेट के अंदर नहीं होता. सो व्हाइल कैलकुलेटिंग फॉर द नेशनल इनकम और डूइंग द प्रैक्टिकल पार्ट, इफ यू हैव टू कन्वर्ट द जी इनटू एन, देन यू विल मिनिमाइज और सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी. एंड इफ यू वांट टू calculate the G, gross domestic product, then you will add on the depreciation between the net part. So when gross domestic product minus of depreciation is equals to net domestic product, or net domestic product plus depreciation is equals to gross domestic product. Simultaneously here GDP stands for the gross domestic product, GNP stands for the gross national product. Gross national product means जब इसके अंदर हम net factor income from abroad add on कर देते हैं, जो हमने अपने previous lecture के अंदर theoretical part में समझा था. Again GNP minus depreciation is equals to NNP and NNP plus depreciation is equal to GNP. So this is a simple concept. Again only the usage of depreciation, that it will be subtracted from gross for calculation of net and added to net while calculating the gross part. So again our second concept here is the domestic product at market price and at factor cost. There's two things. One is the market price and other is the factor cost. In simple terms, factor cost means हमने देखा था कि हम बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, तो उनमें कुछ ना कुछ एक्सपेंस आता है प्रोडक्शन के टाइम पे, उस चीज को हम बोलते हैं द फैक्टर कोस्ट. बेसिकली फैक्टर कोस्ट इंक्लूड्स द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, अगेन रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. एंड मार्केट प्राइस सिंपली हमारी लैंग्वेज के अगर अंदर बात करें तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, जिस भी प्राइस के ऊपर मिलते हैं, दैट इज नोन एज द मार्केट प्राइस. So there are again two concepts here, the domestic product at market price and at factor cost. When we are only talking about a two sector economy, that is जब हम सिर्फ दो सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक सेक्टर होता है प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा होता है हाउस होल्ड सेक्टर, तो वहां पे कोई भी थर्ड सेक्टर की इंटरफेरेंस नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर. तो वहां पे जितना फैक्टर कोस्ट होता है उतना ही मार्केट प्राइस होता है. हमने चैप्टर 2 के अंदर किया था, एज्यूम किया था कि जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक्सपेंस है उतनी फैक्टर इनकम, जितनी फैक्टर इनकम उतनी प्रोडक्शन एंड उतनी ही सेल्स. तो यहाँ पे कोई वेरिएशंस नहीं होती, कोई भी और सेक्टर नहीं है. प्रोड्यूसर सेक्टर ने जितनी प्रोडक्शन की, हाउस होल्ड सेक्टर ने उतनी खरीद ली. प्रोड्यूसर सेक्टर ने जितनी फैक्टर इनकम प्रोवाइड की टू द हाउस होल्ड ने उतनी ही स्पेंड कर दी. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू. बट वेन देयर इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, जब भी गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो वहां पे गवर्नमेंट लोगों के ऊपर टैक्सेस चार्ज करते हैं एंड लोगों को सब्सिडीज या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं. तो वहां पे जो मार्केट प्राइस होता है और जो फैक्टर कॉस्ट होती है उन दोनों के बीच में चेंज आ जाता है. अब चेंज कैसे आएगा? सी, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस टू सेक्टर इकोनॉमी में बराबर हैं, पर जब गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट सामान के ऊपर टैक्सेस लगाएगी. टैक्सेस लगने से सामान के जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. तो यहाँ से टैक्सेस ऑन गुड टेंड टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड विच इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. प्राइसेस गुड्स के बढ़ने से जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है वो अलग अलग हो जाएगा. सेकेंड, सब्सिडीज. अब सब्सिडीज होती हैं वो गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करती है टू द सोसाइटी और टू द पीपल. तो सब्सिडीज की हेल्प से क्या होता है? मार्केट प्राइस क्या हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के? कम. तो सब्सिडीज टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स विच रिड्यूस द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिससे जो मार्केट प्राइस है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वो क्या हो जाता है? कम. तो दोनों की पैरिटी को, दोनों के डिफरेंस को न्यूलिफाई करने के लिए, दैट मीन्स द मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यूज को क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं एंड सब्सिडीज की वैल्यू को क्या कर देते हैं? ऐड बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सी हाउ इट वर्क्स. डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द ग्रॉस
कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, वेदर इट्स जीडीपी वेदर इट्स एनडीपी, मार्केट प्राइस में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट एफ फैक्टर कोस्ट। इसको माइनस करने का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस होती है उसके कारण प्राइसेस बढ़ते हैं, फैक्टर कोस्ट पे कम होते हैं, तो जब हम कम पे कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे, माइनस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकलते कैसे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी लगे, गुड्स के प्राइसेस बढ़े और सब्सिडीज जितनी भी मिली लोगों को जिससे प्राइसेस कम हुए, तो उन दोनों का डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगेन मान लो आपके पास नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट है, द NFIA एडेड है, इसमें GNP निकाल रहे हो चाहे आप NNP निकाल रहे हो, उसके अंदर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो आपके पास GNP एट फैक्टर कोस्ट और NNP एट फैक्टर कोस्ट आएगा। सी द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन जो ग्रॉस एंड नेट को डिफरेंशिएट करते हैं, द कंसेप्ट रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम लाइक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड द कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट मीन्स फैक्टर कोस्ट एंड मार्केट प्राइस। ये तीनों ही कंसेप्ट आपके हर सम के अंदर एप्लीकेबल हैं इन द न्यूमेरिकल पार्ट इन चैप्टर नंबर 4, तो इनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड विद दिस वीडियो वी आर डन विद द कंसेप्ट्स ऑफ दीज 3 टर्म्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।